پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منانے کی قرارداد جنرل اسمبلی نے منظور کر لی۔ وزیر اعظم کی تاریخی قرارداد پر امت مسلمہ کو مبارکباد۔ اسلاموفوبیا کی بڑھتی ہوئی لہر کے خلاف ہماری آواز سنی گئی، عمران خان کا ٹویٹ۔ میں تنگ آ گیا تھا 3.5 سال جب سے حکومت آئی ہے، کل حکومت گئی، پرسوں حکومت گئی، آج گئی، نااہل ہے، سلیکٹڈ ہے، تو اب جو یہ تینوں اکٹھے ہو کے انہوں نے جو کیا ہے، یہ اب کپتان کی جو یہ بندوق کی نشست ہے نا، یہ تینوں اس کے بیچ میں آ گئے ہیں۔ عدم اعتماد ناکام ہوگی، اپوزیشن 2023 کا الیکشن بھی ہارے گی۔ قوم جانتی ہے کہ کرپٹ لیڈروں کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ فضل الرحمان 30 سال سے مذہب کے نام پر سیاست کر رہا ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ اپوزیشن اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ سے خوفزدہ ہے۔ پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ نقصان آصف زرداری نے پہنچایا۔ نواز شریف ضیاء الحق کی نرسری میں پروان چڑھے۔ ہمارا بیانیہ ہے دنیا میں ہر پاکستانی فخر سے اپنی شناخت کرا سکے، وزیر اطلاع چودھری فواد حسین۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا بھارت سے پاکستان میں میزائل فائر ہونے پر گہری تشویش کا اظہار، عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ فورم کو سلامتی صورتحال اور مغربی سرحد پر انتظامات سے متعلق بریفنگ، قومی سلامتی کو یقینی بنایا جائے۔ OIC وزرائے خارجہ اجلاس اور یوم پاکستان پریڈ کے لیے جامع سیکیورٹی اقدامات کیے جائیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ احساس پروگرام غریب اور مستحق طبقے کے لیے صاحباں، بہاولپور میں احساس لنگر خانے کا افتتاح۔ آزمائش میں قوم متحد اور ثابت قدم رہے، عوامی فلاح کے لیے حکومتی منصوبے قابل ستائش ہیں، صدر ڈاکٹر عارف علوی۔ وزیر اعظم کی ارکان اسمبلی کو عوامی رابطے تیز اور کارکنوں کو متحرک کرنے کی ہدایت، فیصلے مشکل لے کر معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ عوامی ریلیف کے لیے حکومت بھاری سبسڈی برداشت کر رہی ہے، عمران خان کی ارکان اسمبلی سے گفتگو۔ امپائر پاکستان کے ساتھ اور جمہوریت کے حامی ہیں، اپوزیشن سے 172 آدمی پورے نہیں ہو رہے، حزب اختلاف کی بے وقوفیوں سے عمران خان زیادہ مضبوط ہوئے ہیں، وزیر داخلہ شیخ رشید احمد۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان ملاقاتیں جمہوری عمل کا حصہ ہیں، اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو مستعفی ہو جائے، وزیر دفاع پرویز خٹک۔ سیاسی صورتحال کے تناظر میں رابطوں کا سلسلہ جاری، بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد کی چودھری برادران سے ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، چودھری شجاعت حسین کی قومی مفاد میں حکومت اور اپوزیشن سے جلد سے منسوخ کرنے کی اپیل۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے MQM پاکستان کے رہنما اور سردار اختر مینگل کی اسلام آباد میں ملاقات، مجموعی صورتحال اور تحریک عدم اعتماد پر گفتگو۔ گھبرانے والے نہیں، اپوزیشن کے ہر ہتھ کنڈے کا مقابلہ کریں گے، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ پیپلز پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی کو اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت، پارلیمنٹ بالادست اور تحریک عدم اعتماد آئینی اور جمہوری راستہ ہے، راجہ پرویز اشرف کی میڈیا سے گفتگو۔ گھبرانے والے نہیں، اپوزیشن کے ہر ہتھ کنڈے کا مقابلہ کریں گے، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار۔ پارلیمنٹ حملہ کیس کا فیصلہ، صدر ڈاکٹر عارف علوی اور PTI کی سینئر قیادت بری، انسداد دہشت گردی عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے بریت کی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا۔ OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس میں شرکت کے لیے 48 ملکوں کی تصدیق، افغان بحران، مسئلہ کشمیر، فلسطین اور اسلاموفوبیا ایجنڈے کے اہم نکات ہوں گے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी, पुलवामा में एक और नौजवान शहीद। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मावराए अदालत कत्ल के वाकयात की तहकीकात का मुतालबा। भारत में हिजाब पर पाबंदी बरकरार रहेगी, कर्नाटक हाईकोर्ट का जानिबदाराना फैसला, मुसलमान अदम तहफ्फुज के शिकार। भारत में इंतहा पसंदी उरूज पर, मध्य प्रदेश में आरएसएस के गुंडों का दरगाह में तोड़फोड़, मजार, गुंबद और मीनार पर जाफरानी रंग कर दिया। रूसी हुकाम का यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इतराफ, अमन मुआहिदे पर मई के ओआइल तक दस्तखत का इम्कान। फ्रांस ने मॉस्को पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 8% कमी के बाद $98.58 फी बैरल की सतह पर आ गई। Bowled him, chopped it on. Obviously the fifth. Now that's kept low. Big shouts. Oh, the fingers. कराची टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल, अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम डट गए। पाकिस्तान के 2 विकेटों पर 192 रन। कल आखिरी रोज ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों जबकि पाकिस्तान को 314 रन की जरूरत। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। न्यूजीलैंड में खवातीन का क्रिकेट वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलियाई टीम नाकाबिले शिकस्त, वेस्ट इंडीज को 7 विकेटों से हरा दिया। इवेंट पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और कराची के साहिल पर खुसूसी सफाई मुहिम, समंदर और समुंदरी हयात का तहफ्फुज का शऊर उजागर करना मकसद। जावेद मियादाद की स्कूल के बच्चों के हमरा शिरकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं समीना राना। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, इन खबरों की तफसील जानिए इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का आगाज, जिसके तहत प्रोग्राम में शमूलियत करने वाले करियाना स्टोर मालकान को दिया जाएगा सब्सिडी की रकम पर 8% मुनाफा 48 घंटों में रकम की बगैर टैक्स बैंक अकाउंट में मुंतकली। आए, हुकूमत का साथ दें और इस कार खैर का हिस्सा बने। अपनी करियाना की दुकान नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एहसास राशन रियायत मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्टर करवाएं या नेशनल बैंक की किसी भी करीबी ब्रांच से राब्ता करें। नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। इतनी पुरानी कहानी के अफसानों में भी नहीं रही। नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your heart. खबरनामे का आगाज करेंगे और खबरनामे के आगाज पे सबसे पहले आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने पाकिस्तान और OIC मुल्कों की जानिब से इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए करारदाद मंजूर कर ली है।
पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने इस्लामोफोबिया से निपटने के आलमी दिन के मौके पर करारदाद पेश करते हुए कहा कि इस्लामोफोबिया का फैलाव खतरनाक हद तक पहुंच चुका है। 9/11 के बाद से मुसलमानों के खिलाफ मनफी जज्बात में इजाफा हुआ। मुनीर अकरम ने कहा कि नस्ल परस्ती एक नई शक्ल के तौर पर उभरी है। What indeed is worrisome is that Islamophobia continues to find strong resonance in the political sphere, ultimately leading to the institutionalization of Islamophobia through new legislations and policies such as discriminatory travel bans and visa restrictions. Various academic studies have revealed that Islamophobia is most visible in certain media and in the discourse of far-right groups and political parties who tend to exploit and build on the general fear of Islam for electoral gains. It seems essential to promote greater information of this phenomena and promote solutions through greater understanding and full respect for human rights and fundamental freedoms. वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद को तारीखी करारदाद करार देते हुए उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई लहर के खिलाफ हमारी आवाज़ सुनी गई। इस करारदाद के मुताबिक 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निपटने का आलमी दिन करार दिया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज अक़वाम मुत्तहिदा ने बिलाखिर दुनिया को इस्लामोफोबिया, मजहबी रिवायात के एहतराम, मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म नफ़रत अंगेज़ तकारीर और इम्तियाजी सलूक कम करने के दरपेश संगीन चैलेंजेस को तस्लीम कर लिया है। अब अगला चैलेंज इस तारीखी करारदाद पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी वज़ीर आज़म अलामा ताहिर अशरफी साहब ने। अलामा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अलामा साहब, आज बहुत अच्छी खबर हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो आवाज़ बुलंद की इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में, जिस दो टोक अंदाज में वज़ीर आज़म ने ये मसला दुनिया के सामने रखा, उसके बाद ये बहुत अच्छी खबर हमारे सामने आई है कि ये करारदाद मंजूर कर ली गई है और आज दुनिया इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मना रही है। इसको कितनी बड़ी कामयाबी समझते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज वाकई ही पूरे आलम इस्लाम के लिए, बल्कि अमन चाहने वालों के लिए, इस्लामी दुनिया के लिए, मुसलमानों के लिए बड़ी ही मुबारकबाद का दिन है। और बिलखुसूस मैं अपने वज़ीर आज़म मोहतरम जनाब इमरान खान साहब को और पाकिस्तानी कौम को इस पर मुबारक देता हूँ कि जिस अंदाज से पाकिस्तान ने इस मसले को उठाया। हमारे वज़ीर ख़ारजा मोहतरम जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने OIC के जो फॉरेन मिनिस्टर इजलास हुआ लास्ट, उसमें जिस तरह इस पर मुत्तफ़िका करारदाद लेकर आए और आलम इस्लाम पूरे को इस तरह मुतवज्जे किया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और इस वक्त यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, पूरी हिंदुस्तान इस्लामोफोबिया का जो ख़तरा है और जिस अंदाज से मुसलमानों पर ये मामला शुरू हुआ है, आज का ये दिन जो है मैं समझता हूँ हर एतबार से मुसलमानों के लिए बहुत खुशी का दिन है। और पाकिस्तान की करारदाद का पास होना और मुस्तकबिल में 15 मार्च को ये दिन मनाया जाना, जब तक ये दिन मनाया जाएगा इसके असरात आएंगे, लोगों को इस तरफ तवज्जो होगी और ये जो इस्लाम पर तोहमत लगती है, इंतहा पसंदी की, दहशत गर्दी की और मुसलमानों को हदफ बनाया जाता है, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। और मैं इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान ने इसके ऊपर मेहनत की और दुनिया को इस जानिब मुतवज्जे किया, और उसके बाद आपने देखा कि पुतिन, रूसी प्रेसिडेंट, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, बरतानिया, सारे लोग इस तरह मुतवज्जे हुए, तो मैं अपने वज़ीर आज़म को भी मुबारकबाद देता हूँ, अपनी कौम को भी, मुस्लिम उम्मा को भी। और फिर हमारी आवाज़ में तुर्की ने, सऊदी अरब ने, राब्ता आलम इस्लामी ने और जितने शेखुल अज़हर ने, जितने लोगों ने भी फिर इस आवाज़ में आवाज़ मिलाई है, वो सारे ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इस पर हम अल्लाह का शुक्रिया भी अदा करते हैं। और जिन दोस्तों ने हमारे साथ ताउन किया,
پاکستان کی اس قرارداد کی حمایت کی، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم امہ میں عمران خان صاحب کا جو مقام ہے اور عالمی دنیا میں جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے وہ آواز بلند کرتے ہیں، اب یہ دنیا پر واضح ہو گیا ہے اور دنیا کے سامنے ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ جو شخص اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے اور مسلمانوں کے مسائل کو بیان کرتا ہے، خواہ وہ اسلامو فوبیا ہو، خواہ وہ توہین ناموس رسالت کا معاملہ ہو، خواہ وہ مظلوم فلسطینیوں کا معاملہ ہو، کشمیریوں کا معاملہ ہو، اور اب آپ کو علم ہے کہ انشاءاللہ 19 مارچ سے 24 مارچ تک پاکستان کے اندر پورا عالم اسلام آ رہا ہے، اور 22 مارچ کو انشاءاللہ پاکستان میں اسلامی تعاون تنظیم کا جو وزراء خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں بھی ان سارے مسائل کے اوپر عملی طور پر کیا کیا جائے اس پر بات ہوگی۔ اور اسلام آباد جو ہے مسلم امہ کے لیے ایک وحدت اور اتحاد کا عملی پیغام، خالی زبانی پیغام نہیں، عملی پیغام اور اقدام کر رہا ہے، اور اس کے آپ اثرات انشاءاللہ مستقبل قریب میں دیکھیں گے، جس کے اثرات مستقبل قریب میں نظر آنا شروع ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ناظرین آگے بڑھیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اسلام فوبیا کے خلاف وزیر اعظم عمران خان کے مدلل اور دو ٹوک موقف کو تاریخی تائید دنیا بھر میں حاصل ہوئی ہے۔ امت مسلمہ آج اسلامو فوبیا کے خلاف دن منا رہی ہے۔ مقصد مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف جاری مظالم کی بھرپور انداز میں مذمت کرنا ہے۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ اسلاموفوبیا کے خلاف وزیر اعظم عمران خان کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں۔ وزیر اعظم نے امت مسلمہ کو اسلاموفوبیا کے خلاف ایک جھنڈے تلے اکٹھا کر لیا۔ پوری دنیا کے اسلامی ممالک میں آج اسلاموفوبیا کے خلاف دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے امت مسلمہ کی بھرپور ترجمانی کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کے دوران پوری دنیا کی توجہ مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات کی جانب مبذول کرائی۔ Terrorism has nothing to do with any religion. This Islamic terrorism, Islamic radicalism, and sadly used by leaders, this has been the main reason for this Islamophobia. And it has caused pain amongst Muslims. It is marginalizing Muslim communities. We must address this issue. وزیر اعظم عمران خان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی امت مسلمہ کی آواز بنے۔ Our Prophet, he is the ideal we all try to get to. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. We must be sensitive to what causes pain to other human beings. روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے بھی ان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے پوری دنیا کو آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مسلمانوں کی دل آزاری سے باز رہنے کا پیغام دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا اپوزیشن کو بھرپور جواب، کہتے ہیں عدم اعتماد ناکام ہونے کے ساتھ 2023 کا الیکشن بھی ان لوگوں کے ہاتھ سے گیا۔ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن نے لوگوں کو ٹماٹر اور پیاز کی قیمت بھلا دی۔ اسلام آباد میں اوورسیز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ 3.5 برس میں مشکل حالات کے باوجود جتنا کام کیا کسی حکومت نے نہیں کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد نوید اظہر۔ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے اوورسیز پاکستانیوں سے کپتان نے اپنے دبنگ انداز میں خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج اپوزیشن نے تحریک انصاف کے ورکر اور عام پاکستانی کو بیدار کرنے کے لیے جو کردار ادا کیا اس پر میں ان کا مشکور ہوں۔ میری ساری پارٹی کو کھڑا کر دیا، انہوں نے مہنگائی بھلا دی ہے، لوگوں کو ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں بھلا دی ہیں۔ میرے سارے حلقوں سے آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں، سارے اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں 27 تاریخ کو۔ 10 دنوں میں ایک دم یہ ملک بدل کیسے گیا ہے؟ فضل الرحمان کی پارٹی سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ چور ہیں، نون لیگ سمجھتی ہے زرداری چور ہے، فضل الرحمان ڈیزل ہے، پیپلز پارٹی نواز شریف کو چور سمجھتی ہے اور اس کو ڈیزل۔ میں ان کا شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ساری قوم نے دیکھا ہے کہ اگر انہوں نے ملک کو بچانا ہے تو بہتر ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈوب جاؤ۔
انہوں نے فیصلہ کیا عدم اعتماد کی تحریک کرنے کا، آپ یقین کریں میں نے اللہ سے 2 نفل مانگ کے شکریہ ادا کیا، اس لیے کہ میں تنگ آ گیا تھا 3.5 سال جب سے حکومت آئی ہے، کل حکومت گئی، پرسوں حکومت گئی، آج گئی، نااہل ہے، تو اب جو یہ تینوں اکٹھے ہو کے انہوں نے جو کیا ہے، یہ اب کپتان کی جو یہ بندوق کی نشست ہے نا، یہ تینوں اس کے بیچ میں آ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ 20 سال خود ایک سمندر پار پاکستانی رہے ہیں، لہٰذا وہ ان کے مسائل اور مشکلات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ آپ کو ہم نے ووٹنگ رائٹ دلوایا، کیونکہ میرا ہمیشہ میں سمجھتا تھا کہ اوورسیز پاکستانیز ہمارا اثاثہ ہیں، ان کی ووٹ بھی ہونا چاہیے، میں تو یہ کہوں گا ان کو الیکشن بھی لڑنا چاہیے۔ جو لوگ ہمارے ملک میں پیسہ بھیجتے ہیں، ملک ان کی ریمیٹنسز پہ چلتا ہے، ان کو کیوں نہیں شرکت کرنی چاہیے پاکستان کی پالیٹکس میں؟ اگر لوگ ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو ان کو دیں ووٹ۔ اب جو میں چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز پاکستان میں انویسٹ کریں، اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کریں گے، 5 سال تک آپ کو ٹیکس ہالیڈے ملے گا۔ میں نے اپنی مشنز کو کہہ دیا ہے، اپنے ایمبیسڈرز کو، کہ آپ کا سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ آپ نے ہمارے اوورسیز پاکستانیز کی زندگی آسان کرنی ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ امریکہ، برطانیہ اور بھارت سمیت کسی بھی ملک کے خلاف نہیں بلکہ ان کی منفی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں۔ نہ میں اینٹی امریکن ہوں، نہ اینٹی برطانیہ ہوں، نہ اینٹی انڈیا بھی نہیں ہوں میں۔ وہ تو کوئی جاہل آدمی ہو جو ایک پورے ملک کے خلاف ہو جائے، کیونکہ ہر قسم کے لوگ بستے ہیں ملک کے اندر۔ آپ ایک ملک کے اینٹی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ان کی پالیسیز کے اینٹی ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کی وار آن ٹیرر کے میں پہلے دن سے خلاف تھا، میں ہمیشہ خلاف رہوں گا۔ میں عراق کی جنگ کے خلاف ڈیمونسٹریشن کے اندر شرکت کی ہے۔ آج ہندوستان کے اندر جو یہ ہندوتا، ان کی جو یہ فلسفی ہے، انڈیا ہندوؤں کے لیے، وہ برابر کے شہری نہیں، مسلمان، خاص طور پر مسلمان اور پھر کرسچنز، بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ ہندوستان کے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی وہ کبھی ایک خوددار قوم نہیں بن سکتی۔ انہوں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ جتنی بہتریاں ہمارے 3.5 سالہ دور حکومت میں ہوئیں کسی حکومت میں نہیں کی گئیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو ہمارے دور میں معاشی میدان میں بھی بے شمار کامیابیاں ملی ہیں اور کورونا کے دوران ہماری ترقی کی مثالیں دنیا میں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیات پر عالمی رہنما اور فورمز ہمارے اقدامات کو سراہ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اسلام فوبیا کے معاملے کو ہم نے اقوام عالم پر اجاگر کیا اور آج یہ اقوام متحدہ میں اہم ایجنڈا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ مختلف سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ وعدے تو کرتی رہیں مگر وزیر اعظم عمران خان وہ پہلے لیڈر ہیں جنہوں نے ان وعدوں کی تکمیل کی۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے کہ دنیا میں ہر پاکستانی فخر کے ساتھ آگے بڑھے۔ اپوزیشن سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹ سے خوفزدہ ہے۔ اسلام آباد میں اوورسیز کنونشن سے وفاقی وزراء چودھری فواد حسین، اسد عمر اور معاون خصوصی شہباز گل کے خطاب کی تفصیل محمد مسر عباس سے جانتے ہیں۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا کہ اپوزیشن صرف اپنی کرپشن چھپانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری میں عمران خان کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان قوم کے محبوب لیڈر ہیں۔ انہوں نے دنیا بھر میں پاکستانیوں کی عزت میں اضافہ کیا۔ عمران خان پاکستان کا واحد لیڈر ہے جو چاروں صوبوں کا، گلگت بلتستان کا، کشمیر کے لوگوں کے دل اس کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز کے دل اس کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ان میں مائی کے لال نواز شریف کو، زرداری کو، ان کے بچے بچونگڑوں کو کہتا ہوں، اپنے گھر میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے۔ آپ آؤ ذرا، جس طرح عمران خان پورے پاکستان میں جلسہ کر کے دکھاتا ہے، تم لوگ بھی نکل کے کر کے دکھاؤ، ذرا مائی کے لال بنو۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت میں کووڈ کے باوجود ملک کی معیشت بہتر ہوئی۔ اس سال 2021-22 ابھی ہم کورونا سے پورے باہر نہیں نکلے ہیں۔ ابھی IMF کے پروگرام کے اندر ہمیں 10 سال میں $6.6 ارب اور صرف اس سال میں ہماری برآمدات میں اضافہ $7.5 ارب ہونے جا رہا ہے۔ گندم، چاول، گنا، مکئی، چاروں کی ریکارڈ فصلیں ہوئی ہیں پچھلے 2 سال کے اندر۔ پچھلے سال 47% اضافہ ایکسپورٹس کے اندر IT کی، اس سال اس کے اوپر مزید 33% اضافہ۔ نیا پاکستان بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तानियों को एक अजीम कौम बनाना चाहते हैं। अवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है। एहसास के प्रोग्राम देने, राशन कार्ड देना है, हेल्थ कार्ड देना है, आपको वो प्रोग्राम अच्छे लगे या ना लगे उसमें गरीब की बेहतरी है। इमरान खान वो काम करता रहेगा और ये हुकूमत इमरान खान की कभी भी कमज़ोरी नहीं है, क्योंकि इमरान खान को पता है कि तमाम ओवरसीज उसके साथ हैं, इमरान खान को पता है उसकी पूरी कौम उसके साथ है। लेकिन बात हमें यह करनी पड़नी है कि जब एक लीडर तगड़े बयान देता है तो उसके पीछे फिर कौम को भी तगड़े तरीके से खड़ा होना पड़ेगा। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान के लिए उम्मीद हैं। अपोजिशन का करप्ट टोला तहरीक अदम एतमाद में कभी कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसीज पाकिस्तानीज के सरबराह अब्दुल्ला रियाज ने कहा कि दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और वो अपने कप्तान के साथ खड़े हैं। मुझे कहना है खान साहब, आज आपको घबराना नहीं है, हम सब आपके पीछे खड़े हैं। ओवरसीयर को जितनी रिस्पेक्ट ओवर द वर्ल्ड मिल रही है आज तक किसी गवर्नमेंट में ना दिलवाई है, और मेरा ख्याल है कि ना कोई आने वाली गवर्नमेंट को दिलाएगी। शुक्रिया अदा करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कि जो ओवरसीज़ के लिए उन्होंने अमली तौर पे इक़दाम किए। 40 बिलियन जो कि रेवेन्यू आता है जो कि इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजह से आता है, और इमरान खान ने आज खड़े होकर स्टेज पे उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को शुक्रिया का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान। इमरान खान ने जो जैसा जो वादा किया था जब कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट्स का राइट मिलेगा, वो उन्होंने वादा पूरा किया। बेहद शुक्रगुजार हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के, पाकिस्तान गवर्नमेंट के, जिन्होंने बड़े अरसे के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सुना है। इस मौके पर वजीर आज़म इमरान खान की 25 साल सियासी जद्दोजहद पर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कौम बनकर संग हो। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने भारत की जानिब से गलती से फायर किए गए मिसाइल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदारत में होने वाले इजलास में आलमी बरादरी से भारत की जानिब से संगीन गलती तस्लीम किए जाने के वाक़े का संजीदा नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस GHQ रावलपिंडी में हुई, जिसमें शुरका ने भारत के स्ट्रेटेजिक असासों के हवाले से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर शदीद खदशात का इजहार किया और कहा कि इस तरह के वाक़यात इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा बन सकते हैं। कोर कमांडर्स को मुल्की दाखिली सलामती की सूरत हाल और मगरबी सरहद पर मैनेजमेंट इंतजामात के हवाले से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कामयाब ऑपरेशन पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास और यौम पाकिस्तान पर फौजी परेड के लिए जामे सिक्योरिटी इक़दाम की हिदायत की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों को सराहते हुए कहा कि तमाम फॉर्मेशंस अहदाफ के हुसूल के लिए तरबियती प्रोग्रामों पर तवज्जो दें। हुकूमत के अवामी फलाही मनसूबों को तोसी देने का सिलसिला जारी है। बहावलपुर में भी एहसास प्रोग्राम के तहत लंगर खाने का इजरा कर दिया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि आजमाइश में कौम मुत्तहिद और साबित कदम, जल्द तरक्की की मंजिल से हम कनार होंगे। ख्वाजा मोहम्मद कलीम की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक बहावलपुर में एहसास लंगर खाने की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की बुनियाद इस्लामी फलाही रियासत के क़याम के लिए रखी गई थी। उन्होंने कहा कि सरमाए का बेहतरीन इस्तेमाल उसे अवामी फलाही कामों पर खर्च करना है। सियासत इक़्तिदार नहीं है, सियासत खिदमत। आप जैसे लोग जो कोशां हैं इस बात के कि पाकिस्तान के अंदर एक निज़ाम रियासत मदीना जैसा लाना चाहिए, तो जहन में रखना कि मंजिल मुश्किल होगी, दुनिया आपके ऊपर प्रेशर डालेगी, मगर मेरे नबी के उम्मती के अंदर मजाल है कि इस उम्मत के घुटने अब कोई कमजोर करके दिखाए। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम से फलाही रियासत का वादा किया गया था, लेकिन बाज बदउनवान अनासर ने मुल्क कौम को शदीद नुकसान पहुँचाया। ये नहीं है अमानतदारी कि कौम का पैसा लूटा जाए और इतना लूटा जाए कि बाहर जायदादें खरीदे जाएं, ये अमानतदारी नहीं है। इसमें अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा और कौम को भी माफ़ नहीं करना चाहिए। इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सेनेटर ओन अब्बास बप्पी और मौलाना बशीर फारूकी ने भी खिताब किया। जामिया इस्लामिया बहावलपुर में इफ्तिताही तकरीब के मौका पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब ने सदर ममलिकत को यूनिवर्सिटी में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग भी दी। इससे पहले सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बहावलपुर के जनरल बस स्टैंड में एहसास लंगर खाने का इफ्तिताह किया। सदर ममलिकत ने लंगर खाने में नादार अफराद के साथ बैठ कर खाना खाया और खाने के मेयार को सराहा। ख्वाजा कलीम,
पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बहावलपुर। OIC का इजलास 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि 48 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने इजलास में शिरकत की तस्दीक की है। वो इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे। ज़िशान अली भट्टी रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के 48वें इजलास के हवाले से वज़ारत ख़ारजा में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इस इजलास से मुस्लिम ममालिक के माबैन इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश करेंगे। मसला फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर OIC ने बहुत ठोस मौक़िफ़ अपना रखा है। हमारी कोशिश है कि कश्मीर पर मुशाहिदा रिपोर्ट्स इस इजलास में पेश की जाएं। इस इजलास में 100 से ज्यादा इंशाअल्लाह रेजोल्यूशंस पर हमारी कोशिश होगी कि इत्तफाक हो सके और वो टेबल हो सके और मंजूर हो सके। वज़ीर ख़ारजा ने मजीद कहा कि हमने इस इजलास की एक थीम मुकर्रर की है। ये थीम शराकत दारी बराए इत्तेहाद अमन व इंसाफ है। ये इजलास जो इंशाअल्लाह 22 तारीख को होने जा रहा है, इसमें इस वक्त तक 48 वुज़रा लेवल की पार्टिसिपेशन की कॉन्फर्मेशन आ चुकी है। हम चाहेंगे जो मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं उम्मा दिन से दो चार है, उस पर भी हम आपस में मशावरत करें और मिल बैठकर सोच विचार के साथ कोई मुस्तकबिल का रास्ता तलाश करें। वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय मिसाइल के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदर को खत लिखा है। खत की कापी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भी भिजवाई गई है। उन्होंने कहा कि 14 मार्च को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से बात की और उनकी तवज्जो इस मिसाइल की जानिब मबजूल कराई कि जो भारत की जानिब से पाकिस्तान पर दागा गया। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अरकान असम्बली को अपने हलकों में अवामी राबते तेज और कारकुनों को मुतहर्रिक करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद में अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का अंदाजा हालिया जलसों में अवाम की बड़ी तादाद में शमूलियत से लगाया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने हमेशा इंसाफ व कानून की बालादस्ती और गरीब की फलाह के लिए काम किया है। मुश्किल फैसलों से मईशत को तरक्की की राह पर गामजन किया। इमरान खान ने कहा कि गरीब तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत सब्सिडी देकर भारी बोझ खुद बर्दाश्त कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा हुआ जो कि अवामी फलाह पर ही खर्च किया गया। सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों की वजह से ज़राअत, तामीरात, बड़ी सनतों, बरामदात और तरसीलात ज़र में तारीखी इजाफा हुआ। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए कौमी सेहत कार्ड, कामयाब पाकिस्तान एहसास प्रोग्राम, कामयाब जवान, नया पाकिस्तान हाउसिंग जैसे दूसरे इनकलाबी इक़दामात किए गए हैं। अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मुलाकातों में तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त और सियासी उमूर भी ज़ेर गौर आए। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल और सूबे से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की और सियासी उमूर पर गुफ्तगू की। अरकान ने इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मुलाकात करने वालों में वफाकी वज़ीर सैयद अली हैदर जैदी, सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो, फ़हीम खान, अताउल्लाह, सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख, अली जुनेजो, सैयद आफंदी, सिदरा तैमूर और रियाज अहमद शामिल थे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि एम्पायर पाकिस्तान के साथ और जमहूरियत के हामी हैं। अगर मामला हल ना हुए तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन से 172 आदमी पूरे नहीं हो रहे। मौसिमुद्दीन से तफसील जानते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि कौमी असम्बली के इजलास और वोटिंग की तारीखों का फैसला स्पीकर ने करना है। 1000 FC और रेंजर्स इस्लामाबाद में तलब कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की सियासत पर मातम करने को दिल करता है। उन्होंने कहा कि जलसे करना सियासतदान का हक है। इमरान खान के मकबूल जलसे हो रहे हैं, उन्हें ये जलसे पहले करने चाहिए थे। शेख रशीद ने कहा कि चोर तहरीके अदम एतमाद के बाद घेरे में आ जाएंगे। जमहूरी प्रोसेस में 1 साल रहता है, इनकी अकल को मातम करने को दिल करता है। 1 साल इलेक्शन से पहले ये फड्डा करने जा रहे हैं। 172 आदमी इनके पूरे नहीं हैं और मुझे खुशी है कि हमारे इत्तेहादी इंजॉय कर रहे हैं। अगर कोई तसादम हुआ तो ये सारी उम्र मेरी बात याद रखें, तसादम को अवॉइड करें, अनारकी मुल्क में मत फैलाएं। अनारकी का नतीजा जो है वो इंतहाई उल्टा निकलेगा। शेख रशीद अहमद ने कहा कि OIC का इजलास काफी बरसों बाद हो रहा है, सियासतदान जिम्मेदारी का सबूत दें। एक सवाल के जवाब में वजीर दाखिला ने कहा कि अपोजिशन की मनफी सियासत की वजह से इमरान खान ज्यादा मकबूल हो गए हैं। मौलाना 4 महीने से लॉन्ग मार्च की बातें कर रहे हैं। मुल्क में इंतशार की सियासत नहीं चलेगी।
मौज़म उद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कहा है कि सियासी जमातों के दरमियान मुलाकातें जमहूरी अमल का हिस्सा हैं, इत्तेहादी हमारे साथ हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई जाना चाहता है तो मुस्ताफ़ी हो जाए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से इस्लामाबाद में मुलाकात की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। MQM पाकिस्तान के वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, वसीम अख्तर और मोइनुल हक शामिल थे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत भी मुलाकात में मौजूद थी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की सरबराही में वफ्द ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने तहरीक अदम एतमाद और सियासी उमूर पर गुफ्तगू की। सियासी जमातों के दरमियान राबते जारी हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द ने मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही से इस्लामाबाद में मुलाकात की और मजमूई सूरत हाल पर मुशावरत की। वफाकी वज़रा तारिक बशीर चीमा और मोहन्निस इलाही भी इस मुलाकात में मौजूद थे। BAP के वफ्द में वफाकी वज़ीर ज़ुबैदा जलाल, खालिद हुसैन मक्सी, मोहम्मद इसरार तरीन, एहसानुल्लाह रकी और रुबीना इरफान शामिल थे। क्वेटा की मासूमा राजपूत एक होनहार तालिबा है। कैंसर बायोलॉजी में मास्टर्स के दौरान आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप भी कर चुकी हैं। इस वक्त आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप के तहत ऑन्कोलॉजी में PhD की डिग्री के लिए भी मुंतखब हो चुकी हैं। हमें आप पर नाज है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने हुकूमत और अपोजिशन से अपील की है कि मुल्क के वसीतर मफाद में जलसे मनसूख करें। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मुल्क के माशी हालात की सियासी महाजराई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इश्तियार अंगेज सियासत से गुरेज करते हुए जमहूरियत और आइन की पासदारी को यकीनी बनाया जाए। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ ने हमेशा मुल्की मफाद की सियासत की है और जमहूरियत की खातिर बड़े फैसले करने के साथ सुलह जो सियासत की हौसला अफजाई की है। विफाकी वज़ीर तवानाई हमाद असर ने कहा है कि सियासत में इदारों के तसादुम के ख्वाहिशमंद मुल्क के दोस्त नहीं हैं। कोई मुहब्बे वतन सियासतदान नहीं चाहेगा कि अपनी सियासत की खातिर मुल्क का नुकसान हो। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर हमेशा मायूस होंगे। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन साहब राय शख्सियत हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा उन्हें इज्जत दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ जमहूरी पार्टी है। हम शिद्दत पसंदी की सियासत और तसादुम पर यकीन नहीं रखते। हमारी सियासत की बुनियाद जमहूरियत है और अवाम की राय हमारे लिए मुकद्दम है। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि इस्लामाबाद में जलसे का मकसद तसादुम नहीं, अगर अपोजिशन पुरअमन जलसा करना चाहती है तो उन्हें खुशामदीद कहते हुए हर सहूलत देंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जमहूरियत में अवाम की राय असल फैसला है और जलसे इस राय के इजहार का एक अहम जरिया है। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपने अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत की है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि पार्लियामेंट बालादस्त और तहरीक अदम एतमाद आइनी और जमहूरी रास्ता है। उन्होंने कहा कि किसी को भी वोट के हक से महरूम करना गैर जमहूरी रवैया होगा। PTI ने स्क्रूटनी कमेटी को तमाम रिकॉर्ड दिया। इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फॉरेन फंडिंग केस की जल्द समाअत करे। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर मामलकत इत्तलात फारूक हबीब ने कहा कि सबके साथ मुसावी सलूक होना चाहिए। मरियम सफदर बताएं कि 65 करोड़ कहां से आए और फौत शुदगान के अकाउंट्स 2017 तक कौन चलाता रहा। जो एक प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया जाता है कि PTI जो है उसने फॉरेन फंडिंग ली है, आज मैं अपने साथ फॉरेन फंडिंग के लोग भी साथ लेकर आया हूँ, जो जिनका ताल्लुक जो है वो किसी का जर्मनी से है, कोई फ्रांस से है, कोई बरतानिया से है, कोई अमेरिका से है। जो मेरे दाएं बाएं लोग खड़े हैं ये तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेइंग मेंबर्स हैं, जो कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वहाँ पर ओवरसीज़ चैप्टर्स हैं ये उनके अहदेदारान भी हैं, जिन्होंने वहाँ हज़ारों की तादाद में पेइंग मेंबरशिप की है।
घबराने वाले नहीं हैं, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। लाहौर में सूबाई वज़रा मियां असलम इकबाल, हाशिम जमा बख्त और हामिद यार हैरात से गुफ्तगू में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि मौजूदा हालात में मनफी सियासत की गुंजाइश नहीं। अपोजिशन ने सियासी नापुख्तगी और गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के हर हथकंडे का मुकाबला करेंगे। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स की सख्ती से तरदीद करते हुए वजाहत की है कि नैब का तहरीक अदम एतमाद से कोई ताल्लुक नहीं। एलामिया में कहा गया है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देने पर यकीन रखता है। नैब का किसी भी सियासी जमात, गिरोह या फ़र्द से नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान से ताल्लुक है। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पार्लियामेंट हमला केस में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और दूसरे रहनुमाओं को बरी कर दिया। जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने दरखास्तों पर फैसला सुनाया। केस में बरी होने वाले दूसरे रहनुमाओं में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक और शफकत महमूद शामिल हैं। शौकत यूसुफ जई, अब्दुल अलीम खान, जहांगीर तरीन और एजाज चौधरी की बरीयत की दरखास्तें भी मंजूर कर ली गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान पहले ही बरी हो चुके हैं। मुकदमे में 81 अफराद ने बरीयत की दरखास्तें दायर कर रखी थीं। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं सबको एक बात समझा सकूं कि कम उम्र की शादी माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। अच्छी तालीम और बेहतर सेहत हर बच्चे का बुनियादी हक है जो माँ की सेहत से जुड़ा है। बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा और कम तादादी एक खुशहाल घराने की जामिन है। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है, सरकारी मुलाजमीन अफसरान फ़राइज़ की अदायगी में कोताही न करें और आम आदमी के मसाइल हल करने के लिए अपने दफातर खुले रखें। उन्होंने ये बात सिविल सर्विसेज एकेडमी लाहौर में खिताब करते हुए कही। तफसील जानते हैं मोहम्मद सुफियान से। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सिविल सर्विसेज एकेडमी लाहौर में तरबियती कोर्स मुकम्मल करने वाले सिविल सर्वेंट से खिताब करते हुए कहा कि आप वो लोग हैं जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि जहां निज़ाम कमज़ोर होता है वहां माशरे के ऐब नुमायां हो जाते हैं। आप मुल्क का मुस्तकबिल हैं, कौम की आपसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। प्रायोरिटीज़ इन लाइफ जो है ना, उसके ऊपर अगर तुम नज़र रखोगे तो कुछ ना कुछ तुम्हें खुद भी तस्कीन और तसल्ली रहेगी। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी बहुत बड़ा अचीवर बन जाए, है ज़रूरी नहीं है, बट यू हैव टू बी सेटिस्फाइड इन लाइफ। ये जो कम्पिटिटिव माहौल है, इससे आदमी अब आप निकल जाएंगे, यानी इसके बावजूद अपनी तरक्की के लिए आप कंपटीशन करेंगे, मगर जनरली आप इससे निकल जाएंगे, आपने हासिल कर लिया। मगर वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बिटवीन पीपल वो ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है। तो लोग लिहाजा उस कंपटीशन की खातिर अपने किरदार के अंदर वो कैफियत बना लेते हैं जो दूसरों के लिए तकलीफ देह होती हैं। इस मौके पर तरबियती कोर्स के दौरान ट्रेनी ऑफिसर्स के गुजरे हुए लम्हात पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तरबियती कोर्स के शुरुका में असनाद तकसीम की और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को गोल्ड मेडल्स और इनामात से भी नवाजा। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी है। फौजियों ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान पुलवामा में एक और नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने नौजवान उवैस राजा को पुलवामा के इलाके अंतिपुरा में मुहासरे और तलाशी की एक कार्रवाई के दौरान शहीद किया, जिससे गुज़िश्ता 5 रोज़ में मकबूजा इलाके में शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद 8 हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में मकबूजा कश्मीर में आज़ादी सहाफ़त के बारे में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को काबिज भारतीय इंतजामिया के खिलाफ फर्द जुर्म करार दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी हुकूमत ने वादी कश्मीर में ज़राए इब्लाग का गला घोंट दिया। मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने श्रीनगर से एक बयान में कर्नाटक हाई कोर्ट के तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी को बरकरार रखने के फैसले की शदीद मजम्मत की है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन उमर अब्दुल्ला ने फैसले को इंतहाई मायूस कुन करार दिया। उन्होंने कहा कि यह फैसला खवातीन को उनके बुनियादी हक से महरूम करने के मुतरादिफ है। भारतीय वजारत दाखिला ने एतराफ़ किया कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में 2020 तक 3 बरस में काले कानून के तहत 750 अफराद गिरफ्तार किए गए।
कोयटा के उस्ताद गुलाम अली ने सैफ गेम्स 2004 में गोल्ड मेडल हासिल किया और इनाम में हासिल होने वाली इस रकम से आपने कोयटा में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कायम किया, जहां आज कई नौजवान मार्शल आर्ट्स के मैदान में तरबियत हासिल कर रहे हैं। हमें आप पर नाज है। भारतीय अदालत भी सियासी और हिंदुत्व पॉलिसियों से मुतासर निकली। रियासत कर्नाटक की हाई कोर्ट ने हिंदू इंतहा पसंदों के मुतालबे के हक में फैसला दे दिया। हाई कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ अपीलें भी खारिज कर दी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्लासरूम में मुसलमान तालिबात पर हिजाब पहनने की पाबंदी को बरकरार रखते हुए तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। हिंदू कौम परस्तों की जानिब से बाहिजाब तालिबात पर रियासत के तालीमी इदारों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। मुजाहिरों के बाद मकामी अदालत ने कमरा जमात में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद की थी। हिजाब के खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क के कई शहरों में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। मुजाहिरीन का कहना है कि तालिबात को क्लासरूम्स में हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए। मुसलमान तालिबात ने हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ भारत की सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया था, ताहम आला अदलिया ने उनकी दरख्वास्त पर समाअत करने से इनकार कर दिया था। नाज़रीन, भारत का सेकुलरिज्म का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। ब्राह्मण, हिंदू और आरएसएस क़यादत के ज़ेर असल मुस्लिम दुश्मनी की जारी मुहिम अब स्कूल से निकलकर सिनेमा घरों तक पहुंच गई है। भारत के एक सिनेमा घर में आरएसएस के गुंडों ने फिल्म रोककर शायकीन को उन तमाम फिल्मों के बाइकआउट पर मजबूर किया जिनमें आमिर खान, शाहरुख खान या सलमान खान ने काम किया हो। हिंदू इंतहा पसंदों और उनके हामियों ने अदाकारों के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की और वंदे मातरम के नारे लगाए। और नाज़रीन, भारत में हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों मुसलमानों की मजहबी इबादत गाहों और मज़ारात की तौहीन का सिलसिला बंद नहीं हो सकता। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के नरिंदापुरम ज़िले में हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों को 50 साल कदीम दरगाह में तोड़ फोड़ की। दरगाह के टूटे हुए दरवाजे करीबी नदी से मिले हैं। हिंदू इंतहा पसंदों ने मज़ार, गुंबद और मीनार पर ज़ाफ़रानी रंग कर दिया, जो हिंदू मजहब की अलामत समझा जाता है। ये रंग हुक्मरान शिद्दत पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी के परचम का भी बड़ा हिस्सा है। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी बढ़ गई है। मामले पर पुलिस की जानिब से अदम ताउन के बाद मकामी लोगों ने गांव के करीब एक अहम शाहराह को बंद कर दिया, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन नामालूम शरपसंदों के खिलाफ केस दर्ज करना पड़ा। इंतजामिया ने इलाके में इजाफी मुसल्लह पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। भारत में मुसलमानों के मजहबी मकामात में तोड़फोड़ का ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी कई रियासतों में मस्जिदें गिराने और बुजुर्गों के मज़ारात को नुकसान पहुंचाने के मुतादिद वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। रूस ने कहा है कि यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त जारी है, ताहम नतीजे के बारे में कुछ कहना कब्ल इस वक्त होगा। क्रेमलिन से जारी बयान में कहा गया है कि रूस जल्दबाजी नहीं चाहता। अमन मुआहदे पर 1 या 2 हफ्ते के दौरान या मई के अवाइल तक दस्तखत का इम्कान है। अब तक दोनों मुल्कों के दरमियान 4 बार मुज़ाकरात हो चुके हैं। रूस ने ताजिकिस्तान के फौजी बेस पर तरबियती मशकें शुरू कर दी हैं। 3 मराहिल पर मुश्तमिल इन मशकों में 1000 से ज़्यादा फौजी शरीक हैं और ये 18 मार्च तक जारी रहेंगी। ताजिकिस्तान के शहरों दुशंबे और बख्तार में फौजी छावनियों पर 7000 से ज़्यादा रूसी फौजी मौजूद हैं। फ्रांस ने रूस के खिलाफ पाबंदियों के नए पैकेज की मंजूरी दी है। पाबंदियों से आम शहरी और इदारों समेत रूसी मईशत के कई शोबे मुतासर हो सकते हैं। शोबा तवानाई में सरमायाकारी और पुरतायुश अशिया की बरामदात ममनू होंगी। बेल्जियम के दारुल ब्रसल्स में भी यूरो करेंसी वाले मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ। यूरो ग्रुप के सरबराह और आयरलैंड के वज़ीर ख़जाना पास्कल डोनाहो का कहना है कि रूस यूक्रेन जंग के पैदा करदा इक़्तिसादी असरात यूरोप में महसूस किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के हालात ने इक़्तिसादियात पर मनफी असरात मुरतब किए हैं। हमें यह तस्लीम कर लेना चाहिए कि यूरो जोन को जंग की कीमत चुकानी पड़ेगी। तेल पैदा करने वाले ममालिक की जानिब से इजाफी पैदावार और तलब में कमी के बायस आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमतों में कमी आ गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 8% कमी के बाद 98.58 डॉलर फी बैरल की सतह पर आ गई। यूएस वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत 8.55% कमी के बाद 94.32 डॉलर फी बैरल पर आ गई है। कुदरती गैस की कीमत में भी 4.23% कमी देखने में आई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान 100 इंडेक्स में 352 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और 100 इंडेक्स 43,719 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 18 करोड़ 90 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 4 अरब 68 करोड़ 94 लाख रुपए से ज्यादा थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2013 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 109 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 31 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं आई।
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ دن کے درجہ حرارت معمول سے 7 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت شہید بے نظیر آباد 44، مٹھی اور سبی میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔